Hello, friends, and welcome to another episode of Chota Vyapari. Thanks for all the views and likes. So, today we are back with the part 2 of the video, what are called as safe trades. And here, specifically, we will discuss about the binaries. Binaries means Nifty and Bank Nifty. Okay, Nifty and Bank Nifty. So, before applying this, there are few prerequisites. What are the prerequisites? Now, why Bank Nifty and Nifty? See, a lot of times what happens is we play around these safe trades only in stocks. Okay, so why we try to avoid Nifty, Bank Nifty? The first reason is these are very volatile market, and unless and until you are ready to give a lot of screen time and learn a lot of things and become disciplined, these might take away a lot of your profits as well as capitals also. So what capital also, why? Because if you see the SEBI advisory on every broker today is 9 out of 10 people lose money. That means 90% of the people lose money. Out of the 10% who make money, 6 to 7% again lose whatever they have earned into taxes and brokerage charges and everything. Correct? So hardly 2 to 3% people make good money who are very disciplined. And मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं बन सकते, but this is for people who are safe traders like me, who are छोटा व्यापारीज like me, right? So in Bank Nifty and Nifty, why we always say that try avoiding these kind of trades? The reason being कि in case you have put a strategy which goes in the money, at this point of time there is no underlying behind it जिसको आप खरीद सकते हो या जिसको आप बेच सकते हो. So this is a Bank Nifty and Nifty totally is a zero sum game. Although FNO इज कम्प्लीटली जीरो सम गेम, बट अगर आपका पुट इन द मनी होता है किसी शेयर में या तो आप कम से कम उस शेयर की डिलीवरी उठा सकते हो. यहाँ पे आप किसी चीज़ से डिलीवरी नहीं उठा सकते हो बिकॉज दीज आर इंडेक्सेस, दीज डोंट हैव एनी प्रॉपर अंडरलाइंग. ये एक इंडेक्स को फॉलो करती हैं, राइट? ओके, सो to apply these safe trades there are 4 prerequisites, and at the same time why we are telling about Bank Nifty today, the reason is very simple कि वी डोंट वांट टू. देखो व्हाट हैपेंस इज अर्लियर मैं क्या करता था, बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत ट्रेड करता था, वोलेटिलिटी होती थी, कभी कभी मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता था, कभी कभी फायर फाइटिंग होती रहती थी, एंड अचानक से ना क्या होता था, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते थे. क्योंकि आपके पास 1,000 रुपये आया तो ठीक है, लेकिन 2,000 रुपये आपके पास से चला जाता है ना, तो कभी कभी कोई क्या हो जाता है कि इंट्रीग सच दैट ओके लेट्स टेक दो एक काम करते हैं हम लोग ना, दो ट्रेड ले लेते हैं, डबल ट्रेड ले लेते हैं, एवरेज आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिससे कि ज़्यादा पैसे लॉस हो जाते हैं, राइट? सो नंबर वन थिंग what we want to do is we also want to earn money safely from stock options, but at the same time we don't want to miss out small opportunities, very small opportunities in the Nifty and Bank Nifty which provides us some kind of free money. Again, please don't misunderstand this free money. ये मैंने पहले भी आपको समझाया है, free money is not actually free, but ये वो money होते हैं जो relatively सेफर होता है, जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अदर ट्रेड्स. ओके, सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट? सबसे पहली चीज होनी चाहिए, दिस कैन बी नियर एक्सपायरी और ऑन एक्सपायरी और नियर टू एक्सपायरी. ओके, सेकेंड थिंग इज दिस इज स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी हु कैन नॉट गिव मच टाइम ऑन द स्क्रीन. मतलब आपका ऑफिस का काम रहता है, आपका बिजनेस का काम रहता है, आपका घर का काम रहता है, बट आप सेफ कुछ करना चाहते हो, आप बीच बीच में हाँ 1 घंटे बाद एक बार चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ओके तो ओके. ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाएगा, राइट? ओके, अनलेस एंड अनटिल मार्केट गोज 3000, मतलब बैंक निफ्टी गोज 3000 पॉइंट्स अप और 3000 पॉइंट्स डाउन, ये आप रिलेटिवली सेफ रहते हो इसमें, करेक्ट? नंबर 3 इज एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, एटलीस्ट कैंडल स्टिक समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश है, बियरिश है, लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, बियरिश है, अभी थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब मार्केट की दिशा पॉजिटिव की ओर है, बियर्स ज़्यादा भारी हैं, बुल ज़्यादा भारी, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए. अगर ये आपको आता है दिस इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज यू डोंट हैव, और इसमें आपको एक अर्ज को रोकना पड़ेगा. जो अर्ज क्या होता है, इमीडिएट प्रॉफिट से. मैंने ये बहुत बार देखा है, लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अरे जल्दी से पैसा बन जाए, जल्दी से पैसा एकदम से, अभी मैंने लगाया, अभी 2 घंटे में 5,000 रुपये बन जाए, 10,000 रुपये बन जाए. सो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेड. मैं ये नहीं बोल रहा वो कमाना पॉसिबल नहीं हो, बहुत लोग कमाते हैं, बट मैंने देखा है मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बैठता नहीं है, मैं नहीं कमा पाता हूँ. तो वॉट आई डू इज़, मैंने जब पहले ये सारी चीज़ें की थी ना, जब बहुत ज़्यादा अर्ज थी कि तुरंत पैसा बनना चाहिए, ज़्यादा पैसा बन जाना चाहिए, तो मैं इसमें रिस्कियर ट्रेड्स लेता था. दैट इज़ द रीज़न वाई हैव रिटन हियर दैट कि मैं बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लूँगा,
एक या दो ट्रेड्स लूँगा मैक्सिमम, एंड द अर्ज टू बुक इमीडिएट प्रॉफिट्स हैज़ टू ऑल्सो गो, कि मैं इससे क्या होगा कि मैं बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लूँ, कुछ ट्रेड्स लूँ, एंड इफ आई मेक स्मॉल प्रॉफिट्स ऑल्सो दैट इज़ ओके फॉर मी। आई डोंट वांट कि, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना मंथली एक टारगेट सेट किया हुआ है कि अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसमें मैं कभी पॉजिटिव में रहता हूँ, कभी नेगेटिव में रहता हूँ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जो भी स्ट्रैटेजाइज होता है दैट आई ओनली प्ले ऑन द प्रॉफिट्स विच आई हैव मेड। अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया है थ्रू स्टॉक ऑप्शंस एट द टाइम, अगर मान लीजिए किसी महीना मेरा प्रॉफिट 20,000 में चल रहा है, तो मैं उस पर 2,000 का रिस्क या 3,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, विच इज़ 1 और 1.5% ऑफ द प्रॉफिट्स विच आई हैव मेड। सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेट। एंड एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर लिया है, कि अगर मेरा एक महीने के अंदर, दैट इज़ 22 वर्किंग डेज एवरेज पे होता है, ऑन अ वीकेंड्स और छुट्टियों को छोड़ के 22 वर्किंग डेज होता है, 22 वर्किंग डेज में अगर मैं 10,000 रुपीज़ कमा पाया सिर्फ 10,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी से, देन दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। क्यों? क्योंकि बाकी का मेजर पैसा स्टॉक के ऑप्शन से आ जाता है। मैं उस चीज़ में ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग होती है, जिसमें कोई भी अंडरलाइंग नहीं होता है एंड आप उसको खरीद नहीं सकते हो, राइट। सो मूविंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, अगर ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, अगर आप भी छोटा छोटा प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज वेरी सिंपल थिंग। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, let me share my screen with you guys. Okay, so this is bank nifty. If you see bank nifty and if you see मैं अपने ओपन पोजीशंस आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट लुक एट दिस पोजीशन विच एक्सपायर टुडे। ओके, दिस आर वेरी सिंपल 90 क्वांटिटीज मैंने सेल किए थे एट 4.75। ये 0.05 दिखा रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बट ये एक्सपायर जीरो में हुआ है, करेक्ट। सो हाउ मच इज द टोटल प्रॉफिट? अगर आप देखोगे तो हार्डली इट इज़ 400 450 का प्रॉफिट है, जिसमें से कुछ टैक्स वैक्स काट दोगे तो 400 रुपये हाथ में आएंगे, करेक्ट। नाउ इज 400 रुपीज़ अ बिग डील? नो। लेकिन इसी टाइप के कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स में लेता रहता हूं जो कि फार फार डीप आउट ऑफ द मनी होते हैं। एंड लुक एट द काइंड ऑफ थिंग विच आई हैव डन, कि ये मैंने कब लिया था? ये मैंने लास्ट वीक लिया था और मैं होल्ड करके रखा था। मैं ये भी आपको बता दूं कि कल मुझे जो मैंने बियर कॉल स्प्रेड लगाया था, उसमें मुझे अराउंड 3,000 के लॉसेस भी हुए हैं। 3,000 लॉसेस क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं वो 3,000 लॉसेस ले पा रहा था। अर्लियर भी मेरा प्रॉफिट हो चुका है, बैंक निफ्टी से भी हुआ है, इस महीने स्टॉक ऑप्शन से भी हुआ है, बट एट द सेम टाइम आई वाज सिटिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,500 और 4,100 ऑलरेडी। दैट इज वाई मैंने इसमें लिया था। एंड अगर आप देखोगे तो 3,000 2,000 के आसपास का कुछ लॉस हुआ था, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकला। बट द होल पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी आपको मार्केट में डायरेक्शन पता चल जाता है, लेट्स से अभी देख के क्या लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा अभी चढ़ रहा है, करेक्ट, अभी चढ़ रहा है अगर, एंड आपको पता ही होगा मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई शेयर चढ़ता है तो वो गिरते गिरते चढ़ता है, एंड जब कोई गिरता है तो वो गिरते गिरते चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते गिरता है, सॉरी। एंड यूजुअली क्या होता है, जो फॉल होता है वो थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा स्लो एंड स्टडी होता है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा होता है, कभी कभी ग्रोथ भी एकदम अननेचुरल हो जाता है, ऊपर की ओर भाग जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ बड़ा स्लो एंड स्टडी होता है, लेकिन फॉल थोड़ा फास्ट होता है, राइट। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि जब हमें ये डायरेक्शन समझ में आ गया, देखो डायरेक्शन क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट हॉल्ट ले लेके ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे उसको सबसे, अगर इस पॉइंट को उसने कट कर दिया है, सबसे पहला रेजिस्टेंस अगर मार्केट को यहाँ गिरना होगा, यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा? यहाँ पे फेस करेगा। दूसरा कहाँ फेस करेगा? यहाँ फेस करेगा। तीसरा कहाँ फेस करेगा? यहाँ पे भी फेस करेगा, करेक्ट। मल्टीपल जगहों पर रेजिस्टेंसेस फेस करेगा। एंड ये रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो फिबोनाची यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो पिवट पॉइंट्स देख सकते हो, आप मूविंग एवरेजेस देख सकते हो, राइट। तो कुछ कुछ देख के मान लो आपको समझ में आ गया कि आइदर द मार्केट इज इन अ मूविंग डायरेक्शन, सो फाइंड आउट अ वेरी सेफ, व्हाट आई वांट टू से इज फाइंड आउट अ वेरी सेफ पुट ऑप्शन अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। फाइंड आउट अ वेरी सेफ पुट ऑप्शन कि अच्छा भाई मैं एक काम करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, कल हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, कल नहीं परसों, इस पुट ऑप्शन में, क्योंकि मैक्सिमम हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं इसमें, 4,500 का मैक्सिमम, 19 to 50 करोगे 4,500 का मैक्सिमम है, जिसमें से 4,100 निकल चुका है, करेक्ट। तो 350 रुपये बचा है, 350 को हम जाने देंगे। एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट खोजने की, ये पॉइंट कौन सा है, 46,300। ओके, सो लेट्स से मैं आज के डेट में क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी 46,300 का पी निकालता हूँ, या तो क्लोजेस्ट वीक का निकालता हूँ, या तो थोड़ा अगर मैं
अगर थोड़ा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है या मुझे कवर करना आता है प्रॉपरली, तो मैं थोड़ा रिस्क इसकी और लूंगा, एक हफ्ते बाद की लूंगा, करेक्ट। ये एक्सपायरी 25 तारीख को है, याद रखना, 25 अप्रैल इज द एक्सपायरी, ओके। 25 तारीख, आज कितना डेट हो गया, आज हो गया 10 से 25 के अंदर इनफैक्ट 6-7 दिन का छुट्टी भी है, कल भी एक छुट्टी है और 3 वीकेंड्स भी है, तो 7 दिन का छुट्टी अगर मान लो 7 दिन या 5 दिन का छुट्टी मान लो, तो 15 में से ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं, और 10 दिन में क्या ये प्राइस यहाँ से यहाँ गिर सकता है? द आंसर इज यस, गिर सकता है, बट उसके गिरने के चांसेस कितने हैं? थोड़े, यहाँ तक गिरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे भी कम है। क्या मार्केट 5%, एक बढ़ता हुआ मार्केट इमीडिएटली 5% गिर सकता है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मान लो ये भी आपको समझ में नहीं आता कि नहीं 46,300 भी मुझे डर लग रहा है, ओके, हम और थोड़ा नीचे चल जाते हैं, हम 46,000 देख लेते हैं, या इसके भी नीचे चले जाते हैं, ये पॉइंट पे तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगा। चलो देखते हैं 45,600 का कितना होगा। मैं अप्रैल महीने का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये अब 15 दिन बचा है, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि ये 30 दिन बचा है, सिर्फ 15 दिन बचा है एक्सपायरी में, तो बी 21 पॉइंट है। अगर मैं इसको सेल कर लूं, अगर आप मार्जिन तो अगर देखोगे तो हार्डली द मार्जिन इज 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़। मैं अगर इसमें 5 क्वांटिटी भी सेल करता हूँ तो 73,000 रुपीज़ या 74,000 अगर आपने प्लेज लिया हुआ है तो इसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा। आधा इज हाउ मच, लेट्स से क्लोज टू 40,000 रुपीज़ मान के चलते हैं, तो 40,000 रुपीज़ में 75 इंटू 21 कितना होता है? इफ़ यू सी 75 इंटू 21 इज इक्वल टू 1,575 रुपया डिवाइडेड बाई 40,000, तो 3.94% का रिटर्न हो गया। 3.94% का रिटर्न कितने दिन में हो गया? 15 दिन में हो गया। 15 दिन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बाई 2, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8% रिटर्न। 8% रिटर्न इन अ मंथ, आप उसको ईयरली कैलकुलेट कर दो तो यू विल बी शॉक टू सी व्हाट कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेके, यू विल बी शॉक टू सी, ये मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है कि कितना परसेंटेज बन जाता है। इट विल बी मोर देन इवन 100%। 5% के हिसाब से अगर आप लेते हो मंथली कंपाउंडिंग 12 महीना में वो 79.5% बन जाता है। ये आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाई डोंट यू ट्राई टू सिलेक्ट सच काइंड ऑफ सेफ ट्रेड्स, एंड जैसे ही आपको दिखे, अच्छा एक काम करता हूँ, अब देखता हूँ अब मार्केट कहीं बहुत ऊपर चढ़ गया हो, राइट, बहुत ऊपर चढ़ गया हो, तो आपको ये भी देख चेक करना पड़ेगा कि वह शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, मिड टर्म ट्रेंड क्या है एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अगर मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का है कि ओके कि मैं ट्रेंड तो मेरा लॉन्ग टर्म है लेकिन शॉर्ट टर्म में ये गिरा हुआ है, अगर यहाँ तक गिरने का आप वेट करोगे तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अगर इस पुट को सेल किए होते तो प्राइस थोड़ा कम मिलता, लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ से जब आप रिकवरी देखते हो तब ये पुट को सेल कर देना। सिमिलरली ऑन अ फॉलिंग मार्केट, जब आप फॉलिंग मार्केट देखते हो, यहाँ पे आपको दिख गया कि अच्छा यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो ये पॉइंट पे नहीं, उससे बहुत ऊपर के पॉइंट के नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या तो नेक्स्ट वीक या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के पुट एंड कॉल ऑप्शन को सेल करना शुरू करो। तो इससे होगा क्या, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा ना वो बहुत अच्छा बन जाता है। पॉसिबिलिटी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक बहुत छोटा सा कॉल ऑप्शन भी सेल करके रखा हुआ है 51,500। सो राइट नाउ एंड 15,500 किस हफ्ते का? अप्रैल महीने का। तो राइट नाउ द मार्केट इज समवेयर अराउंड, अगर लेट मी जस्ट स्टॉप एंड शेयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे। Right now if you see the market is at 48,900, that means 49,000, करेक्ट। 49,000 से मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या वो 15 दिन के अंदर, जबकि इतना चढ़ चुका है, क्या वो 51,500 पहुँच सकता है? आराम से पहुँच सकता है, क्यों नहीं पहुँच सकता। बट इफ़ यू सी इट इज़ टू फार अवे। अगर आप देखोगे 5% चढ़ना पड़ेगा मार्केट को अगले 15 दिन में, जो कि चढ़ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ चढ़ नहीं सकता, हो सकता है चढ़ जाए, लेकिन 15 दिन में चढ़ सकता है क्या? तो वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, प्लस एट द सेम टाइम जब ये स्लो एंड स्टडी चढ़ भी रहा होगा तो एडवांटेज क्या होगा, बिकॉज ऑफ थीटा डी के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक सेलर के लिए, उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता रहेगा। सो दैट इज द रीजन वाई वी टोल्ड कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, बट ये आपका क्या होगा, शांत होगा। क्यों? द रीजन बीइंग, अगर इस पुट ऑप्शन की मैं आपको डेल्टा दिखाऊं, सो लेट मी शो द डेल्टा फॉर यू so that you can understand in a better way why I am telling that these are not that much, you don't need to take that much of headache unless and until market में बहुत तबाही ना आ जाए, ठीक है। तो what was the price if you remember, 45,600, करेक्ट। 45,600 का अगर आपको मैं पुट दिखाऊं तो 45,600, वेयर इज 45,600, अरे बाप रे, तो दिख ही नहीं रहा है। 46,045, अच्छा ये
ये दिख ही नहीं रहा है 40 क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि इससे नीचे जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि हम कैसे जाएं, बट 46,000 का देख लेते हैं। करेक्ट, मैंने तो इससे भी नीचे का पुट दिखा रहा हूँ आपको जो कि अवेलेबल है अच्छे प्राइस पे। बट एक सेकेंड, होना तो चाहिए 24 अप्रैल। अच्छा 24 को, इनफैक्ट 25 को भी नहीं है, 24 अप्रैल को एक्सपायरी है, राइट। 24 अप्रैल, 14 दिन बचे हैं और, राइट। तो और अच्छी बात है। तो अगर मैं पुट में देखूं कहीं पे मान लीजिए ये भी सिमिलर ही है, 27 रुपये, 21 रुपये को छोड़ के 27 रुपये हम देखते हैं। तो 27 रुपये का भी अगर डेल्टा देखोगे ना आप, 0.04 है। इसका मतलब क्या है, इफ़ यू रिमेंबर द कॉम्पोनेंट्स, एंड इसका अगर थीटा भी देखोगे तो -5 है। करेक्ट, ये मेरे को इनफैक्ट ट्रेड आज ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 डेज ये गिर जाएगा। बट हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर जाए मंडे के दिन या कुछ ऐसा हो, तो या फ्राइडे के दिन कुछ ऐसा हो। बट हो सकता है मैं इसको फ्राइडे ही ले लूँ। बट इफ़ यू सी द थीटा इज़ ऑलरेडी 5 रुपीज़, दैट मीन्स कुछ नहीं करके भी 2-3 दिन में इसका प्राइस 10 रुपये कम हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम डेल्टा इज सो लेस दैट कि अगर मार्केट नीचे भी गिरना शुरू करता है ना, व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट, अगर मैं यहाँ पे ले चलूँ एंड इस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट फॉलिंग ऑल्सो, करेक्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई मीन टू से इज कि सपोज जिसका ये तो आपको पता ही है, डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू अंडरलाइंग, करेक्ट। तो अगर ये मार्केट गिरना भी शुरू करता है ना, देन ऑल्सो प्रॉब्लम, द गुड थिंग इज इसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, गिरेगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मैंने आज 17 रुपीज़ में ये 17.12 में ये सेल किया था। और ये सेल कब किया था, जब प्राइस एकदम से नीचे था। नीचे मतलब इट वाज अराउंड 48,600 समथिंग, वहाँ से 900 तक भी चला गया, 300 पॉइंट ऊपर भी चला गया। बट यहाँ पे अगर आप पोजीशन में देखोगे, इट हार्डली वेंट फ्रॉम 17.12 टू 17.35। दैट इज अनदर एडवांटेज। सो द होल पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज, rather than spending so much of time in time on the screen, if you can find out such trades, it's better टू यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया ही है टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड इज 14,000। एंड आप क्लोज वाले ट्रेड लेते हो ना, जहाँ पे वो एट द मनी के आसपास का ट्रेड लेते हो, ये मार्जिन भी आपको ज़्यादा लगेगा, प्रॉफिट नो डाउट ज़्यादा होगा, लेकिन हेडेक भी ज़्यादा होगा। हेडेक का मतलब है आपको स्क्रीन टाइम, हेडेक तो नहीं है एग्जैक्टली। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, आई एम सॉरी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो जिनको बहुत अच्छे से नहीं आता है, देन दीज आर द सेफ थिंग्स विच यू कैन ट्राई आउट इनिशियली। एंड जब आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो डीप ओटीएम से फिर ओटीएम करना, फिर ओटीएम से एटीएम करना, फिर एटीएम से आईटीएम करना शुरू कर देना, करेक्ट। सो दिस वाज आवर होल एक्सप्लेनेशन वाई, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू मिस आउट ऑन द ब्यूटी ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, जहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे फ्री पैसे मिल रहे होते हैं, हर वीक मिल रहे होते हैं इनफैक्ट, करेक्ट। अगर हर वीक भी आप कुछ कुछ पैसा बना रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, depending on your capital size, if you make up 2,000, 5,000, 10,000 rupees, that is also decent profit from a safe point of view, okay। So अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो then it's good, अगर नहीं समझ में आया हो then you can pause these videos, listen to it again। आप ये पेपर ट्रेड करके देख सकते हो before trading। This is not any kind of recommendation to buy or sell any put option, call option or anything, but this was only from the purpose of explaining you how to find out such trades जहाँ पे सेफ भी होता है, एट द सेम टाइम मार्जिन भी कम लगता है, प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा होता है, एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दैट थीटा डीके, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको इन वीडियोज़ में कॉन्टेंट अच्छा लगता है एंड आपको लगता है कि दीज आर एडिंग वैल्यू टू योर नॉलेज, देन काइंडली शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको हमसे सीखना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया द नंबर प्रोवाइडेड, और आप हमें डायरेक्टली पिंग भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।